Hello student, in the last video lecture we studied about the combination of error. We studied how the error is combined during the addition, in the sum, in the difference means subtraction, and combination of error in product, multiplication, and the quotient means division. Okay, we also solved few numericals. Now today we will be discussing one important example 2.10. It's very important, 3-mark example it is, example 2.10. Two resistors of resistances R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus or minus 4 ohm are connected in series, then in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination, parallel combination. Use the relation R is equal to R1 plus R2, and for B, this is for A, for B 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and delta R dash upon R dash square is equal to delta R1 upon R1 square, delta R2 upon R2 square. Okay, let us understand this numerical. Okay, now see here, there are two resistances. One resistance is R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm. This is the total resistance R1, and you know that every measurement can be written as average value plus or minus average absolute error. So this 100 is what? This 100 is the average value. It is a mean value, but we represent it as R1 plus or minus delta R1. Similarly, this 200 ohm, in fact, it is the mean resistance of second resistor, and this 4 is the average absolute error. So this can also written as R2 plus or minus delta R2. So student, there are two resistors. One resistor is R1, one resistor having the resistance value R1 100 plus or minus 3 ohm, second resistor having the resistance value 200 plus or minus 4 ohm. Now these two resistances are connected in series. Okay, this is the series connection and this is the parallel connection. I think you have studied in the class 10 that when the resistors are connected in the series, then the equivalent resistance, total resistance or the effective resistance is R equal to R1 plus R2. And when the resistances are connected in the parallel, the effective resistance is given as this. मैं आपको फिगर जरा समझा देता हूँ कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन, राइट। और पैरेलल में कैसे होंगे? दिस इज R1 एंड दिस इज R2, लाइक दिस.
So if two resistances are in series, the total resistance R is R1 plus R2. If two resistances are in parallel, then the total resistance R dash, and its formula is 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. And we have also given one formula. Where it is used, that I will tell you later. Okay. So here we want to find the total resistance in the series and in the parallel. So let us understand the solution. First we consider the series combination of R1 and R2. So series combination of R1 and R2. So already it is given to us that for the series combination R is equal to R1 plus R2. So we have to use R is equal to R1 plus R2. Is that clear? Now here we consider error on both the side. Consider error on both side. So if you consider the error in this R, then you can write it as R plus or minus delta R. This R1 can be written as like this: R1 plus or minus delta R1. R2 can be written as R2 plus or minus delta R2. Okay, so R1 plus or minus delta R1 plus R2 plus or minus delta R2, right? And how this can be written further: R1 plus R2 plus or minus delta R1 plus delta R2. Student, all these things are based on the theory. Whatever theory we have understood, on the basis of that I am writing all this. So R1 plus R2. So what is R1? R1 is this 100 average value. This R1 and this R1 are different. I have told you this thing many times. This R1 is the average value of resistance R1, and this R1 is the total measurement. This is mean value of R1, this is total measurement. So we have to take this R1 100. So this is 100 plus R2. What is R2? It is 200 plus or minus delta R1 plus delta R2. Absolute error in R1 and R2. So that is 3 and 4. So 3 plus 4. So this is 100 plus 200, 300 plus or minus 7 ohm. So R plus or minus delta R is 300 plus or minus 7 ohm. Okay, so answer is correct. 300 plus or minus 7 ohm. This is the symbol of ohm. I make it proper. Okay, so first question we have solved for the series combination. Now we solve for the parallel combination. So parallel combination, for parallel combination of R1 and R2. So for the parallel combination, we have already given this formula: 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, right? Now what is the next step? Consider error on both sides. So consider error on both sides. So if we consider the error in this, then it can be written like this. They have directly given to us, because from this, how this is obtained, that is not explained in the textbook, and the method of it is little bit complicated. You cannot understand at this level, because the mathematics which is used behind this,
Okay, that you will not understand at this stage. So that's why they have directly given to us. So we can write delta r dash divided by r dash square is equal to delta r1 upon r1 square plus delta r2 upon r2 square. We have this formula. Now here this r dash, what is that r dash? So this r dash is the effective resistance. R dash is effective resistance for parallel combination. So you have already studied that the effective resistance for the parallel combination is R1 R2 divided by R1 plus R2, right? So R1 is what? 100, R2 is 200. So 100 multiply by 200 divide by 100 plus 200. So here this is how much? 20000 divided by 300. So R dash is equal to 200 by 3 ohm. This is R dash. What is R dash? R dash is the effective resistance. So we have determined R dash. Now what we have to determine? We have to determine delta R dash. This delta R dash we have to determine. So it is very simple. We have to make delta R dash as a subject of equation. So I just do one thing. I denote this as equation number 1. So from equation 1, delta R dash is equal to, taking this R dash square on the right side. So R dash square in a bracket delta R1 divided by R1 square plus delta R2 divided by R2 square. We have this. So R dash, what it is? It is 200 by 3. Now student, this 200 by 3 can be simplified. I think 66.6 जैसा कुछ आता है. 200 divide by 3, 66.66. 66.66. अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक में देखोगे ना, बहुत ही शॉर्ट में किया हुआ है. मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में उसको किया है. ओके, सो आर डैश कितना है? 66.66 का स्क्वायर, राइट? डेल्टा R1, डेल्टा R1 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन R1. तो एब्सोल्यूट एरर इन R1 कितनी है? 3 है ना. तो 3 लेना है यहाँ पर. 3 डिवाइड बाय R1. R1 मतलब कितना? 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 कितना है? डेल्टा R2 4 डिवाइड बाय आई थिंक 200 है R2. यस, 200 का स्क्वायर. वी हैव दिस. ओके, नाउ आई नीड स्पेस टू राइट. सो मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूँ. आप वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लो पहले, ठीक है? सो डेल्टा R डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे? 66.66 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? 66.66 का स्क्वायर 4443. इट कम्स आउट वेरी लार्ज वैल्यू 55. टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है. 3 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, तो 3 डिवाइड बाय 100, 2 0 और. सो इट इज 0.0003 प्लस 4 डिवाइड बाय 200
जो आंसर आया उसको फर्दर 200 से डिवाइड करो, सो 0.0001, सो दिस इज 4443.55 और ये होगा 0.0004। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करो 4443.55 इंटू 0.0004, so this comes out to be 1.77742, इतना आंसर आता है। ये है डेल्टा आर डैश। डेल्टा आर डैश मतलब क्या? आर डैश क्या है? आर डैश इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बराबर। ये जो आर डैश है ना, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डेल्टा आर डैश क्या होगा? डेल्टा आर डैश इज द एब्सोल्यूट एरर इन दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो हम लिखेंगे, अच्छा ये लिखा 1.7777, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो 1.777 है इसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 777 है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हम एक ही डिजिट रखेंगे। वी विल रिटेन दिस, ये जो 7 है उसको हम रिटेन करेंगे। क्या करेंगे? रिटेन। रिटेन मतलब बचा के रखेंगे, और उसके बाद का जो डिजिट है उसको ड्रॉप कर देंगे। तो किसको ड्रॉप करेंगे? 7 को ड्रॉप करेंगे। अब ये जो 7 है वो 5 से ग्रेटर है, तो रूल जो आगे आने वाला है वो ये कहता है कि जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके पहले वाला डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज कर देने का। तो 7 में 1 इंक्रीज करो तो 8 हो जाएगा। तो दिस इज 1.8 ओम। सो डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 1.8 ओम। सो हम लिखेंगे हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? आर डैश प्लस और माइनस डेल्टा आर डैश। तो आर डैश कितना आया? आर डैश आया 66.66 प्लस और माइनस 1.8 ओम। सो आई जस्ट कन्फर्म द आंसर विद द टेक्स्ट बुक। 66.7, ये जो 66 है उसको भी 7 कर दिया है। तो आप एक काम करना, यहाँ पर ही आप उसको 66.7 कर देना, क्योंकि ये 6 को ड्रॉप करोगे तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम। तो दिस इज द आंसर। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क न्यूमेरिकल इट इज। स्टूडेंट एक छोटा सा पर बहुत ही काम का टॉपिक, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पर, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर। एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी raised to power। अगर सिंपल वे में बोलूँ तो अगर कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी पावर है तो उसमें कितनी एरर होगी वो हमें फाइंड करना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने आपको एक बात बार बार बोली है, इन एवरी फिजिक्स मेजरमेंट देयर विल बी एन एरर, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको एक स्फीयर दिया, छोटा सा एक स्फीयर दिया, एंड आई आस्क टू फाइंड इट्स एरिया, सरफेस एरिया आपको मैंने फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू, ऐसे लिखता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है जिसको मेजर नहीं करना होता है। मेजर किसको करना होता है? रेडियस को मेजर करना होता है। तो आप रेडियस मेजर करोगे स्फीयर का विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो आपने रेडियस मेजर किया, अब रेडियस में एरर तो होगी, हर मेजरमेंट में एरर तो होती ही है, तो रेडियस में एरर होगी। रेडियस में एरर होगी तो जब आप उस रेडियस का स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसमें भी एरर होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एरर ड्यू टू पावर। ठीक है, एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर, मतलब जब भी कोई क्वांटिटी की पावर होती है 2 पावर 3 पावर 4 पावर एनी पावर, तो उससे कितनी एरर आती है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, सो छोटा सा बट बहुत ही काम का टॉपिक है। सो कंसीडर फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू a रेस टू 2, बराबर। एक क्वांटिटी है, a क्वांटिटी, उसका स्क्वायर है और a स्क्वायर को हमने डिनोट किया z से। सो वी वांट टू फाइंड हाउ मच इज द एरर इन z। देयर विल बी एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, so there will be an error in the measurement of a square, and what is a square? a square is z। तो z में कितनी एरर होगी वो हमें फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, ये जो a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए, इज दैट क्लियर? बराबर। अब स्टूडेंट याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था एरर ड्यू टू प्रोडक्ट। थोड़ा सा वो फिर से समझाता हूं, एरर ड्यू टू प्रोडक्ट। तो उसमें था z इक्वल टू ए इंटू बी था, तो डेल्टा z बाई z वॉज वॉट? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इज दैट क्लियर? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है उसका हमको यूज करना है। सो यूजिंग रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 2 फॉर इक्वेशन 1, इस रिजल्ट का इसमें यूज करना है। फर्क क्या है, यहां पर a इंटू बी है, मतलब a और b अलग अलग क्वांटिटी है, यहां पर दोनों एक ही क्वांटिटी है। तो क्या आएगा? डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस अगेन डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि दोनों ही ए है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। इज दैट क्लियर? सो हियर द पावर वॉज 2। इफ इट इज 3 पावर, यहां पर 3 आ जाएगा, सिंपल। अगर यहां पर पावर 1/2 है, a रेस टू 1/2, a रेस टू 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a, तो यहां पर 2 के जगह 1/2 आ जाएगा। अगर क्यूब रूट है तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। इन शॉर्ट a की जो भी पावर है वो यहां पर आ जाएगी और ये सेम रहेगा डेल्टा ए बाई ए। समझ में? तो मैं लिखता हूं कि इन जनरल फॉर z इक्वल टू a रेस टू n, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a। इज दैट क्लियर? सो यहां पर हम एक रिजल्ट लिखेंगे, इसका हमको कंक्लूजन लिखना है। तो क्या है इसका कंक्लूजन? द एरर ड्यू टू कोशंट is n times the fractional error or the relative error in the measurement। ठीक है, सो यहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे the relative error in a physical quantity raised
टू पावर रेज टू n पावर is n times the fractional error, n times the fractional error in physical quantity. ठीक है, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी. डेल्टा जेड बाई जेड क्या है? रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर. डेल्टा जेड बाई जेड इज अ रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो. तो रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू n पावर, मतलब क्वांटिटी की n पावर है. जैसे कि a रेज टू n है तो n पावर है, तो इट इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर. इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मैं आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ. सपोज देयर इज ए क्वांटिटी z इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r. अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है, ये भी बहुत काम का है, ठीक है, ये काम में आएगा. z इज इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q c रेज टू r. a is a quantity, physical quantity, b is a physical quantity, c is a physical quantity, and p, q, r are their powers, and z is a physical quantity which is obtained by the combination of this quantity a b c. ठीक है, फिजिक्स में ऐसा होता है ना, फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, बराबर. तो उस सिचुएशन में ये काम में आता है. तो z इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r. नाउ सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एरर इन z. सो फ्रैक्शनल एरर इन z, मतलब z में कितनी फ्रैक्शनल एरर होगी, कितनी रिलेटिव एरर होगी. तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा a बाई ए. कैसे लिखा? a रेज टू p का p टाइम्स डेल्टा a बाई ए कैसे लिखा? स्टूडेंट, इसका यूज किया हमने, राइट. प्लस q डेल्टा b बाई बी. आप पूछोगे सर प्लस क्यों किया? तो स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज किया. a इंटू बी है तो सम होता है, उनके फ्रैक्शनल एरर का सम होता है और पावर आगे आ जाती है, बराबर. फिर मैं लिखूंगा प्लस आर डेल्टा सी बाई सी. अब आप बोलोगे सर प्लस आर क्यों किया? स्टूडेंट, पहले मैं इसको दूसरे तरह से लिख देता हूँ. अगर मान लो कि आपको ऐसा नहीं दिया होता और तो ऐसा दिया है a रेज टू p b रेज टू q c रेज टू माइनस r. लिख सकते हैं ना, c रेज टू r डिनोमिनेटर में है, अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो c रेज टू माइनस r है. अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया होता तो भी डेल्टा z बाई जेड का आंसर यही होता. आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो r की पावर माइनस है, तो फिर आपने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? सोचो, क्यों मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, प्लस लिखा? द रीज़न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो. कुछ याद आया? जस्ट थिंक, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर द 30 सेकेंड. ओके, I tell you the reason. In that video, I told you that we are always considering the maximum error. We are always interested in knowing the maximum error in our measurement. तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस लेते हैं, माइनस कभी भी नहीं लेते, बराबर. वो जो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ थी ना, उसमें से हम कौन सी वाली वैल्यू लेते थे? प्लस वाली लेते थे, ठीक है. तो प्लस वाली क्यों लेते थे? क्योंकि हमको मैक्सिमम एरर फाइंड करने में इंटरेस्ट है, दैट्स वाई. सो लिख लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट, एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 2.11 मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है. फाइंड द रिलेटिव एरर इन z एंड z इज दिस. ठीक है, तो अभी हमने जो कंसेप्ट समझे हैं ये उसी के बेस पर है. एक बार मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये लिखा क्या है. बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, a रेज टू 4 b रेज टू 1/3
डिवाइड बाय सी डी रेस टू 3/2 ऐसे, बराबर। वी वॉन्ट टू फाइंड डेल्टा जेड बाई जेड, तो एक ही स्टेप में इसका आंसर आएगा। ए रेस टू 4, सो इट इज 4 डेल्टा ए बाई ए। एरर ड्यू टू पावर उसी का इसमें यूज करना है। बी रेस टू 1/3, 1/3 डेल्टा बी बाई बी। ओके, अब ये सी है, सी की क्या पावर है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो +1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अंडरस्टूड है कि वो होगा ही डेल्टा सी बाई सी, और यहाँ पर पावर है 3/2, सो 3/2 डेल्टा डी बाई डी। इज दैट क्लियर? अगर ये दो न्यूमरेटर में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी उनकी पावर, फिर भी आंसर तो यही रहेगा, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो एक छोटा सा 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, लिख लो इसे।